welcome back viewers. You're watching News X and I'm Kriti Mehta. Now cooking is set to become more expensive for households across India as domestic LPG cylinder prices rose once again. Oil marketing companies have increased the price of 14.2 kg domestic LPG cylinder by 29 rupees, pushing the Delhi price from 913 to 942 rupees. This is the second hike in 3 months, adding pressure on household budgets, especially when they're already dealing with inflation concerns. The revised prices come into effect from today as consumers brace for another increase in daily expenses. Let's take a look, in fact, at the changes in the LPG prices across India and where domestic LPG prices stand when compared with other countries. Firstly, let's take a look at city-wise what prices of LPG we are looking at. Delhi, the new price is 942. It's seen a 29 rupees hike and was previously 913 rupees. Kolkata, current price is at 941.5 paisa. 29 rupees of hike in Kolkata from 912 rupees. That was the previous rate. In Mumbai, it's 941.5. The current price of cylinder, again 29 rupees hike countrywide. Previously it was 912.5. Bengaluru 944 is the current LPG price. Earlier 915 was the rate. And Chennai, right now it's 957, while earlier it was at 928. So that's the national picture. Metro wise, looking at other cities as well, Hyderabad was 964 currently. Previously it was less by 29 rupees. Lucknow 945 rupees and Bhubaneswar 968, Chandigarh 951 rupees, Gurugram 950 rupees. So you can see how the prices currently look like after an increase of 29 rupees across all these cities. Now let's compare what we are looking at in comparison to other countries in the world. While in India 942 is the price of cylinder, LPG cylinder for domestic households. Islamabad is still much higher at 1046 rupees, Pakistani rupees. New Delhi 942, Dhaka is 1225. In fact, we're bringing you the prices in Indian rupee. So those are the details. Kathmandu 1207 per cylinder, Colombo 1241 per cylinder, and New York 1755 rupees per cylinder. Canberra in Australia 1765 per cylinder. Okay, so that's how the comparison looks like. You can see how across India, while there has been a hike in rupees, it's still much lower than what we are looking at as far as prices in other nations of the world are concerned, whether in Asia, whether in Australia. Okay, let's also now get a check from the ground with my colleagues who are joining us from across the cities. I have Atul Ranjan from Delhi, Narendra Yadav from Lucknow, Kolkata, Renik is joining us, and Belly is there in Bengaluru. Atul, you're in the national capital. Have you been able to speak to any of the people on the ground, how they are reacting to the hike in LPG prices and whether they are fearing a hike in their household budgets now? Well, yes, cooking a simple meal has once again gotten expensive for millions of Indians. And right now I'm standing in Delhi. We have a lot of, several women around me who will speak about the problems that they are facing because of the, the recent hike. In fact, some of them are not even aware of the hike that was made today. So we'll speak to them and get to know what do they think about the hike. Ma'am, आपका क्या नाम है? पूनम देवी। आपको पता है कि आज दाम सिलेंडर के बढ़े हैं? हाँ जी। तो ये जो दाम फिर से बढ़े हैं 3 महीने में दूसरी बार बढ़ गए हैं, क्या कहेंगी आप इस दाम पर? तो यही कहेंगे ना, सिलेंडर कैसे लेंगे जो दाम बढ़ गए हैं, गरीब आदमी क्या करेगा है? ये बताओ, चूल्हा भी नहीं जला सकते हैं, तो क्या जब महंगाई हो रही है तो हम क्या कर सकेंगे? गरीब आदमी तो कुछ नहीं कर पाएगा, खाना कैसे बनाएंगे जब गैस महंगी हो गई है? ये बताओ। आगे और लग रहा है कि महंगा हो सकता है। हो भी सकता, जब अब हो गया तो आगे को भी होएगा, अब क्या कह सकते हैं।
इतनी महंगाई हो रही है तो आदमी क्या करेगा? We have more people around who will speak to them, and some of them have, in fact, stopped using LPG cylinders since the prices got, hiked in March, and once again, the recent hike makes it nearly impossible for them to go back to, LPG. Ma'am, आपका क्या नाम है? सुनीता। आप क्या गैस पे खाना बनाती हैं गैस या पे भी बना लेते हैं, गैस खत्म हो जाता है तो चूल्हे पे बनाना पड़ता है, फिर जल्दी मिलता नहीं है गैस। अब लकड़ी भी महंगी होगी, इतना गरीब आदमी इतना तो कमाता भी नहीं जितना उसमें चला जाता है इंसान का। तो अभी जो दाम फिर से बढ़ गए हैं, क्या अब और मुश्किल होगी? क्या आपका क्या बजट बिगड़ जाएगा? पैसे बस ये है कि ऐसी काम धंधे से थोड़ी वो हाथ तंग हो जाता है। जितने बच्चे कमाते भी नहीं इतना तो महीने में उस सिलेंडर में चले जाते हैं, बरकत कुछ रहती नहीं है उसकी वजह से ही। We just heard from her what she really interestingly pointed out is the fact that because of the recent crisis, people already were not getting cylinders very easily. Now the hike in price clearly has disturbed the budget, and because given the inflation of different products as well, and the salaries haven't risen in compensate with the inflation. So that you heard from different homemakers who say the price hike really hurts and impacts their budget in Delhi. Right, absolutely. In fact, let me also now go across to Narendra. नरेंद्र, आपके पास भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, हमें बात करिए, बताइए क्या कहना है उनका। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में भी कीमतें बढ़ चुकी हैं। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 29 रुपये के इजाफे के बाद यहाँ पे कीमतें 980 रुपये तक पहुँच चुकी हैं। और क्या असर पड़ रहा है लोगों के घरेलू बजट पर और क्या कहते हैं ये लोग, हम बात करते हैं। जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, 2 से 3 बार बढ़ाई जा चुकी हैं और कमर्शियल सिलेंडर भी बढ़े हैं, तो ऐसे में आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्योंकि खाड़ी युद्ध के चलते स्टेट ऑफ हार्मोन्स से सप्लाई बाधित होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कीमतें कितना और बढ़ सकती हैं और इसका असर क्या पड़ रहा है आप लोगों पर? देखिए, इसका सबसे बड़ा असर तो सीधे मूलभूत आवश्यकताओं में आता है, जैसे गैस सिलेंडर हुआ, बिजली हुई, और इन दोनों पे दाम जिस कदर से बढ़ रहे हैं सारी चीज़ें। अभी देखिए 29 रुपये घरेलू सिलेंडर का दाम बढ़ गया, कमर्शियल सिलेंडर का दाम 50 रुपया बढ़ गया। पहले से सिलेंडर के जो दाम थे आसमान छू रहे थे। अब इसका ऐसा प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि स्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी कि लोगों का जो 2 टाइम का निवाला है उसके लिए भी चुनौती हो जाएगी। महंगाई से खुद लोग त्रस्त है। अब रह गया बात, जिस तरीके से खाड़ी देशों की बात हो रही, खाड़ी देशों से युद्ध की बात चल रही है, जिस तरीके से हमको पर्याप्त मात्रा में रसिया से गैस उपलब्ध हो रहा था, क्रूड ऑयल उपलब्ध हो रहे थे, अगर हम विश्व स्तर में हमारी विदेश नीति इतनी अच्छी है ही है तो हम उससे आयात करते हैं। हम अमेरिका के दबाव में इस तरीके का डिसीजन ले नहीं पाए कि हम उससे लेना बंद कर दिया। आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि रसिया भी हमको तेल देने से इनकार कर रहा है या महंगे दामों पे देने की बात कर रहा है। तो मिला जुला कर कुछ भी हो, लेकिन सरकार की चाहे जो भी पॉलिसी हो, लेकिन अब सरकार को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, ये सबके लिए बहुत बड़ी समस्या की बात है। अब 1000 के पार होने की स्थिति बन चुकी है, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। बिल्कुल, आपका क्या कहना है? जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं और आप दुकान भी चलाते हैं, घर भी चलाते हैं, तो ऐसे में क्या असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? सर, असर तो दिखाई दे रहा है, दिक्कतें होती है, घर वालों को भी होती है। अच्छा। गैस में 29 रुपये बढ़ गए हैं घर वाले सिलेंडर पे, और 29 रुपये बढ़ना यानी कि ये हो जाता है कि हर 2-3 बार ऐसा हो चुका है। आगे आने वाले टाइम पे दिक्कत ही देता है। अब किसी घर में 5 लोग हैं, किसी घर में 7 लोग हैं, कैसे क्या करेगा इंसान? तो दिक्कतें आ रही हैं। क्या आपको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं या स्थिर हो जाएंगी? सर, अभी तो इतना है, तो आने वाले टाइम पे और ही बढ़ेगा। घट तो नहीं रहा है, रेट और बढ़ ही जा रहा है इसका। सरकार से गुजारिश है कि इस पर सिलेंडर पर थोड़ा सा कम दाम करें। बिल्कुल, इस तरीके से देखा जाए तो लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश में भी लोग बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं और कहीं ना कहीं सरकार से चाहते हैं कि इन पे कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल। Belly, want to come to you as well. Given that prices have been increased, are people making a push towards PNG connections? Kriti, we've been speaking to a lot of people who are affected with this price hike in the LPG cylinders.
that too the domestic category, they are kind of a majority. People are refusing to comment. They are saying that this is inevitable here, and even if they protest or they would do some kind of reaction. There is no respite for that. This is happening after the fuel price hike that had come. The petrol price hike, the diesel price hike, the CNG price hike, and with that, the other essential commodities price hike too. The LPG cylinder was expected. These people are somehow kind of taken shield, is what we have gathered from the department stores or from the supermarkets. What we hear is that a lot of induction stoves are being sold, and people are kind of looking for alternatives as to how they can deal with this. Some of them are switching to the firewood thing, but because of the shortage of food, that too has become a concern, and now people are looking for induction stoves as well as the other alternatives is what they are looking for. But this thing, the price hike has certainly caused a kind of pinch in the pocket of the common people in Karnataka. Now the newly elected Chief Minister, D.K. Shivakumar, has kind of told that he is seeking a report from the state saying that, what can be done for an alternative for this, and he would speak, or he would come out with a solution tomorrow, is what we gather to see. Okay, sure. Finally, let's go to Renick also, who is in Bengal. Renick, किस प्रकार का माहौल है लोगों में? बीजेपी की नई सरकार आई है और आते ही एलपीजी 3 महीने में दूसरी बार प्राइसेस बढ़ गया है डोमेस्टिक सिलेंडर के। देखिए, डोमेस्टिक सिलेंडर में जो प्रॉब्लम सामने आ रहा है, एलपीजी का ये जो प्राइस हाइक हुआ है, इसमें 2-3 सेक्टर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा है। एक तो हाउस होल्ड में बहुत सारे गरीब परिवार है जिनके पास में ये जो 29 रुपया भरना, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से 3 महीने में जिस तरीके से लगातार प्राइस हाइक होते हुए नजर आ रहा है, ये अगर होता रहे तो उनका गैस लेना में भी मुश्किल में पड़ना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो छोटा बहुत सारे ऐसे दुकान है जिस जगह पर कमर्शियल सिलेंडर की जगह पर वो लोग डोमेस्टिक सिलेंडर यूज करते हैं। तो वो छोटा जो दुकानदार है, जो लोग कार्ट में खरीदारी करते हैं, तो उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एलपीजी का इस तरीके से प्राइस हाइक होना, तो उसमें जो उन लोगों का खाने का जो प्राइस है उसमें भी ज्यादा करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही बहुत सारे ऐसे परिवार है जो लोग घर से होम डिलीवरी करते हैं, तो उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, क्योंकि जो खाने का प्राइस या जो मेनू का प्राइस वो लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, मगर उनका जो गैस सिलेंडर का प्राइस वो दिन पे दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ ही एलपीजी का ये जो प्राइस हाइक, इसका इम्पैक्ट ऑटो यानी कोलकाता में जो लोकल ऑटो चलता है उस ऑटो में भी पड़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ऑटो जो चलता है वो एलपीजी में, बहुत सारे ऑटो चलता है जो एलपीजी गैस पे चलता है, तो उस पे 29 रुपया करके बढ़ना, तो ऑटो जो ड्राइवर है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो लगातार प्राइस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ पेट्रोल डीजल का प्राइस, जिस तरफ एलपीजी का प्राइस जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसमें ट्रैवलिंग कॉस्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा, यानी ऑटो का जो फेयर है वो फेयर भी ज्यादा करना पड़ेगा। यानी एक तरफ हाउस होल्ड, दूसरी तरफ जो लोग बिजनेस करते हैं उनके ऊपर, और उसके साथ जो ऑटो वगैरह चलते हैं एलपीजी के ऊपर डिपेंड करते हुए, उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको लेकर पॉलिटिक्स भी अभी फिलहाल चालू हो चुका है। एलपीजी का जो डोमेस्टिक एलपीजी गैस उस सिलेंडर का प्राइस हाइक होने पर ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एकदम सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है, बीजेपी सरकार को निशाना किया गया है। एक तरफ नया सरकार आया है, पश्चिम बंगाल में नया बीजेपी सरकार गठन हुआ है, और अभी बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है तृणमूल कांग्रेस। ये पूरा मामले को लेकर जिस तरीके से एलपीजी का प्राइस हाइक हो रहा है, इसको लेकर ही अभी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस का दावा किया जा रहा है कि नया सरकार नया जो दिशा दिखाएगा, उससे पहले गरीब को और भी गरीब करने का प्लानिंग जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। मगर जो सिचुएशन अभी फिलहाल बने हुए हैं, उस सिचुएशन में जिस तरीके से
दूसरे देशों से अगर देखा जाए, दूसरे देशों से अगर कंपेयर की जाए, जो वो भारत में एलपीजी का जो सिलेंडर प्राइस वो बहुत ही कम है, और ये सिचुएशन आम जनता भी समझ रहा है। ऐसा ही बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से भी तृणमूल कांग्रेस का जो कमेंट, उसका रिएक्शन दिया गया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आम जनता जानते हैं कि देश सुरक्षित हाथ में है, और इसी वजह से दूसरा देशों से तुलना में भारत में एलपीजी जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है उसका प्राइस जो है वो कम है। जी रेनेका, धन्यवाद, एंड इन फैक्ट थैंक यू टू ऑल माय कॉलीग्स फॉर ब्रिंगिंग अस वॉइसेस ऑफ द पीपल ऑन द ग्राउंड, and with that viewers, we're slipping into a very quick break. We'll be back.